Hello everyone, welcome to our study channel. Myself Anup Oja, and today we are going to discuss on the most important topic of chemistry class 11, structure of atom. So as the chapter states structure of atom, that we are going to deal with the internal structure of atom. Okay, briefly concluding what we have already learned in this context in earlier classes. So we have gone through this chapter in class 9 with the chapter name atomic structure. So we have already familiar with the atom, molecules, matter, and different models of atom, and how elements are already categorized in the periodic table. So we will be detailed about this topic in this session. Okay, so we'll continue. Before this, uh, see the slide one more time. Structure of atom, part 1, taught by Anup Oja, co-powered by ramakumari.weebly.com. Post your doubt at sharmamoksh at the rate gmail.com. And one more thing, do join our telegram and whatsapp group, as we provide a lots of questions, quizzes, facts, daily quizzes, and today's class ppt also. So do join our group, and the link is in description, so go and join it. So we'll continue further. Structure of atom, as it states that we are going to deal with the internal structure of atom, and in this chapter we will also read about the contribution of these great scientists. Who are these great scientists? Can you recognize them? Yes, you, of course, you have already accept some, like you didn't have heard the name of de Broglie, Heisenberg, and Schrodinger, but you have already familiar with J.J. Thomson in class 9, Rutherford, Bohr, Einstein, John Dalton. Okay, so we will we will discuss their what they have contributed, what their theory says in this chapter. Okay, and it is not just a chapter; it is chapter of great Nobel Prize winners in different fields of science. So we'll continue further. General introduction of structure of atom. What is general introduction? General introduction is nothing but how the first atomic theory came in existence. So although the credit for the first atomic theory is usually given to the ancient Greeks, a landmark in the progress of chemistry took place with the advent of Dalton's atomic theory. You have already learned Dalton atomic theory in class 9. What does it states? Dalton's atomic theory states that every element is made up of a particle which is indivisible, or these are made up of extremely small particles that are indivisible, means they are called as atom, and they are uncuttable. Dalton states his theory in, I think, in 1808. So after a century it was discovered that there are much more smaller things than atom. So Dalton was first to propose the atomic theory in 1808. After a century, atom subparts were discovered by Thomson, Rutherford, Goldstein, Chadwick, and I'm sorry, not Bohr. Bohr just discovered the model of atom. So that's not Bohr, and Rutherford also. They only, but no, Rutherford discovered nucleus of the atom. So these were the scientists who discovered the subparts of atomic atom. Sorry, and different models were also proposed by various scientists, and among them are Thomson's, Rutherford's model, and Bohr models. Atom were famous and were recognized and were recognized by many scientists, and they were having importance and exemption both. So uh,
we'll go further. Discovery of the fundamental particles. What do you mean by fundamental particles? Fundamental particles means that human bodies, what is the fundamental particle of human body? A cell. A cell is the basic, I think, fundamental particle of a human body. Okay, so what are the fundamental particles of an atom? They are electron, proton, neutron, etc. Okay, nucleus also. So we will first of all discuss about electron. So what is an electron? An electron is that fundamental particle which carries one unit negative charge. Electrons carries negative charge. Okay, electron carries negative charge, and as you all know earlier only, so negative charge and has a mass nearly equal to 1 by 1/837 of that of hydrogen. So here you will ask why we have compared electron mass with hydrogen atom, because at that time hydrogen was considered as a standard element. Basically now we compare every mass of element with carbon, but at that time we compared with hydrogen atom and it was considered as a standard atom. So how did electron came into, how did it was discovered? So Thomson discovered electron for the first time by conducting cathode ray tube experiment. So if anyone asks how electron was discovered, your answer will be cathode ray tube experiment. And who discovered? Thomson. Okay, so electron are having negative charge, you all know, and electron is a universal constituent of matter. If anyone asks a brief about, tell me, if anyone asks it in 2 or 3 marks, you should conclude all these points. Okay, don't miss any of them. How, what is electron, who discovered, which charge electrons carries, and this is a point that I added. Electron is a universal constituent of matter. Now you might be thinking how electron was discovered, as you haven't seen electron, neither you have seen atom also. So not seeing atom and discovering its subparts is a great achievement of science. So we are reading it in a minutes, and it took a century to discover the fundamental particles, and it took a century to discover an atom also. It's century, or it's many years. So we'll continue further with discovery of electron. How does electron discovered? So as you all know, physicist J.J. Thomson began his experiment with the cathode ray tubes. What were the cathode ray tubes? It was a 60 centimeter of glass tube. Okay, uh, and both the ends were covered with vacuum. So cathode ray tubes are sealed glass tubes of 60 centimeter. They were of 60 centimeter that Thomson took. Glass tubes from which the most of the air has been evacuated. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वैक्यूम लगाएंगे तो एयर तो रहेगा ही नहीं. ओके, अगर एयर रहता तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करती, फ्लो कैसे करती? So a high voltage, approx 1000 volts were applied across between the electrodes from cathode to anode. Okay, and the atmospheric pressure inside the sealed tube was to be 10 raised to minus 2 atomic pressure. Okay, before that, in one atomic pressure the electricity would not flow. So उन्होंने क्या किया, कम किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किया वैक्यूम के अंदर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके. हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स at one end of the tube, which cause a beam of particle to flow from the cathode. Cathode is a negatively charged electrode, क्योंकि
कैथोड क्या है, कैटायन जाता है तो जिस इलेक्ट्रोड पर कैथोड होता है और एनायन जिसमें जाता है वो एनोड हो जाता है। तो कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, एंड एनोड द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये सब तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो इसको कैथोड एनोड तो सभी जानते होंगे। जब इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी दोनों इलेक्ट्रोड से के बीच में से पास की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁻² का किया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना लो किया उसने। फिर क्या रिजल्ट आता है, ठीक, टू टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक, थॉमसन प्लेस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जब उसने टू टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, थॉमसन प्लेस 2 अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। ओके, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स ये आपको दिख रहा है, थॉमसन मॉडल है ये रहा। ये देखो, ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके, सो सॉरी सो कैथोड एनोड से जब 10,000 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर पास किया उसने, ठीक, और फिर ये देखो कैथोड रेस टू टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स, थॉमसन प्लेस 2 अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स, ओके, अराउंड द कैथोड रे। जब कैथोड रे निकले तो उसने पहले से ही 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाए रखे थे। ठीक, कैथोड रे वॉज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज। जो कैथोड रे था वो नेगेटिवली चार्ज से डिफ्लेक्ट हो गया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, दिस इंडिकेट्स, तो थॉमसन को क्या लगा, उसको ये इंडिकेशन मिली कि जो कैथोड रे वॉज कंपोज, जो कैथोड रेस के जो पार्टिकल्स थे दैट वेर कंपोज ऑफ वन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, सो this indicates that the cathode ray were composed of the negatively charged particles. Thomson also placed 2 magnets. उसने फिर 2 मैग्नेट भी लगाए, Thomson also placed 2 magnets on either side of the tube. सॉरी, इधर नहीं, एक इधर मैग्नेट लगाया, एक इधर मैग्नेट लगाया उसने। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जो फिर he observed that the magnetic field also deflect the cathode ray. कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा उसने भी उस कैथोड रे को डिफ्लेक्ट कर दिया। तो रिजल्ट क्या है उसके एक्सपेरिमेंट का, तो उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था कि कैथोड रे कुछ ऐसे पार्टिकल्स कैरी आउट करते हैं जो कि एटम से भी छोटे हैं और उनके पास नेगेटिवली चार्ज्ड है। यही मैंने लिखा है, Thomson determined the mass to charge ratio of the cathode ray particles which led to a fascinating discovery। कि अब एटम तो देखा नहीं, एटम से भी छोटा कुछ होता है, उसने वो डिस्कवर किया तो फैसिनेटिंग डिस्कवरी तो थी ही। तो मास ऑफ ईच पार्टिकल्स वाज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ एनी नोन एटम। जो मास, जो इलेक्ट्रॉन का मास था उसको तब नहीं पता था, जो इलेक्ट्रॉन का मास हो तो एटम से भी छोटा ही होगा। तो उसके लिए तो बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कवरी थी कि भाई मैंने ऐसा कुछ ढूंढ लिया जिसका मास तो एटम से भी छोटा है, यानी कि वो पार्टिकल भी एटम से ही छोटा होगा। तो यही उसने कंक्लूड किया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, जो उसको मिला फ्रॉम दिस एविडेंस, थॉमसन मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन। उसने कंक्लूजन्स क्या निकाले कंक्लूजन, हर एक एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन तो होता ही होता है। तो उसके एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि द कैथोड रे इज कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैथोड रे इज कंपोज्ड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक प्लेट और नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। हमेशा लाइक ही डिफ्लेक्ट होता है, नेगेटिव डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट हो जाएगा। सो नेगेटिव डिफ्लेक्ट हुआ तो उसे पता चल गया कि भाई वो जो चीज़ उसने जो डिस्कवर की वो नेगेटिव चार्ज की है। और जब पार्टिकल मस्ट एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द एटम सिंस द मास ऑफ ईच पार्टिकल इज ओनली 1/2000 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने उसका मास
फिर से हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करने पे 1/2000 आया। अप्रॉक्स किया उसने, जो 1/1837 निकाला उसका अप्रॉक्स था, बाद में वो एग्जैक्ट वैल्यू निकली थी। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड विद इन द एटम। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पीपीटी दे दूंगा तो उसमें क्लियर रहेगा। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड विद इन द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। जाहिर की बात है, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसने ये भी कंक्लूड किया कि जो सब एटॉमिक पार्ट फाउंड किया उसने, वो सारे एलिमेंट्स के अंदर, सारे एलिमेंट्स के एटम के अंदर होगा। एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब थॉमसन जी ने इतना कुछ किया, इतना कुछ करने के बाद उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिला। इतना एक्सपेरिमेंट, इतना माथापच्ची करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब हम क्या करते हैं, अब जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका कुछ मास होगा, उसका भी चार्ज होगा, तो वो कैसे निकला, हाउ डिड इट डिटरमाइन, सो द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो हाउ डज द इलेक्ट्रॉन चार्ज वॉज डिटरमाइंड। सो टू फाइंड द चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया कि उसका चार्ज और उसका मास क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। सो वो 2 एक्सपेरिमेंट थे। पहला जे थॉमसन का, ही यूज्ड, फर्स्ट क्या था, जे थॉमसन, he used different tubes fitted with the electrodes of different metals। ठीक, उसने हर बार अलग अलग ट्यूब में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स फिट किए और अलग अलग मेटल्स लिए। ठीक, he placed different gases in the tube। he found every time that the ratio of charge by mass, that is E by m, जो हर बार निकला वो सेम ही था। तो द वैल्यू क्या फाइंड हुई उसको 1.76, ये सब आप नोट कर लेना, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 1 मैंने छुपा दिया। द वैल्यू ऑफ फाउंड टू बी 1.76 इंटू 10⁻18 कूलम्स बाय ग्राम। चार्ज का कूलम होता है, मास का ग्राम होता है, इसलिए कूलम बाय ग्राम। 1.76 इंटू 10⁻18। ये था पहला जिससे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की डिटर्मिनेशन की थी। बट आफ्टर 20 ईयर्स मिलिकन आया, सॉरी काफ़ी जूम हो गया, मिलिकन आया तो Millikan's in 1917 with the help of his oil drop experiment। अब मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो एटोमाइज़र में से ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस किए, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस किए, ओके। तो जो ड्रॉपलेट्स वे अलाउड, जब ड्रॉपलेट्स को यहाँ नीचे आने दिया, ठीक, एटोमाइज़र से इधर से ये ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे, इधर टेलीस्कोप लगाया था, इधर टॉर्च और फिर एक्सरे का एक प्लेट भी लगाया था। ठीक, जब ड्रॉपलेट्स एटोमाइज़र से आए, ओके, सो दीज ड्रॉपलेट्स वेर अलाउड टू मूव थ्रू अ टाइनी पार्टिकल्स इन द अपर प्लेट। ये 2 प्लेट्स थे, इन अपर प्लेट इन अ इलेक्ट्रिक कंडेंसर। So they were allowed to enter through a tiny hole in the upper plate of an electric condenser। So इसके बाद ऑयल ड्रॉप से उन्हें जो इनका रेट ऑफ फॉल था ना, जब नीचे आने के लिए, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो लोग नीचे आए, तो सम ऑयल ड्रॉप्स का जो मास था वो कैलकुलेट किया गया, बट जो एयर स्पेस
जो एयर स्पेस था बिटवीन द प्लेट्स, द एयर स्पेस वेयर इरिटेटेड बाय एक्सरेज। जिसने एक्सरे का इधर डाला था वो इरिटेटेड की जो एयर स्पेस थे दे वेर इरिटेटेड बाय द एक्सरेज। तो जो एयर स्पेस था वो तो आयोनाइज्ड हो गया, बट जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर थे। ऑयल ड्रॉपलेट्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया था तो उनके अंदर फिट हो गए। फिर क्या हुआ कि अब तो ऑयल ड्रॉप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था। फिर जब वोल्टेज अप्लाई किया गया इलेक्ट्रोड्स यानी कि अपर प्लेट और जो नीचे दो प्लेट उसने लगाई थी, जब वोल्टेज अप्लाई किया गया था ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स थे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो जो ऑयल ड्रॉप्स का तो मास कैलकुलेटेड हो गया था, अब इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव की तरफ गए, अब उनका मास मिल्टन ने कैसे कैलकुलेट किया वो हम देखते हैं। ठीक, विद द हेल्प ऑफ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ फाउंड। ठीक, उसने जो इतना बड़ा एपरेटस लिया, फिर एटोमाइज़र, फिर दो इलेक्ट्रिक कंडेंसर प्लेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ, टॉर्च और टेलीस्कोप जिससे वो देख पाया। देन चार्ज क्या उसको मिला 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप ये मत सोचना, आप इसको मिक्स मत कर देना, ये चार्ज बाय मास है। दिस वॉज चार्ज बाय मास, थॉमसन ने चार्ज बाय मास फाइंड किया था। ये ओनली चार्ज है और मास ये रहा। और इन चार्ज बाय मास जब करेंगे तो इसका भी जो क्या निकला 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ओके, थस वही मैंने यहाँ पे लिखा है, थस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन may be calculated from the values of E/m, चार्ज बाय मास। ठीक, जब उसने कैलकुलेट किया उसका ये आया। ओके, ठीक, द चार्ज 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ द चार्ज एंड इट इज कॉल्ड 1 यूनिट। क्या लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द चार्ज 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, 1 यूनिट है। जब इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट चार्ज जब पूछेगा तो ये रहा इसका आंसर, इट इज स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी। ओके, सो द मास 9.11 into 10⁻⁻28 ग्राम is nearly to the 1/837 of that हाइड्रोजन। इसने भी वही कंक्लूड किया जो थॉमसन ने किया था, बट इसका एक्सपेरिमेंट अलग था। सो इलेक्ट्रॉन का मास ये और E/m जो थॉमसन ने निकाला 1.76 इंटू 10⁻18 कूलम्स बाय ग्राम। सो ये था कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे आपने सबसे पहले एटम पढ़ा, एटम के फंडामेंटल्स, पार्टिकल्स कैसे आए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर जब हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, तो अब हम उसे पढ़ेंगे। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं वही JEE और नीट में ट्विस्ट करके हर बार पूछा जाता है, तो हम उसको पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ कैथोड रेस। जब थॉमसन ने कैथोड रेस भी फाइंड किया तो उसने भी कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कवर की होंगी, बट जो सबसे पहले जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक्स ने 1879 में सबसे पहला कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, सॉरी विलियम क्रूक्स
ने 1879 में कैथोड रेस की स्टडीज़ की थी। डिस्कवर तो कैथोड रेस बहुत पहले ही हो गए थे, सॉरी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, तो विलियम क्रुक्स ने क्या फाइंड किया, कैथोड रेस के बारे में उसने क्या जानकारी हासिल की, क्या उसे लगा कि कैथोड रेस की क्या खूबियाँ हैं, तो उसने वो सब देखा, फिर उसने वो सब कंक्लूड किया, फिर उसने ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस दिया जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट वर द प्रॉपर्टीज, विल डिस्कस इट। सो लेट्स कंटिन्यू। पहली प्रॉपर्टीज थी, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ देम और विच कम इन देयर पाथ, दिस शोज कैथोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप कैथोड रेस जो ये, मैं एक बार पीछे आपको लेके जाता हूँ, जो ये कैथोड रेस के बीच में अगर आप कुछ सॉलिड पार्टिकल रखते हो, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, आप कुछ रखते हो, ये इधर सॉलिड हो, तो जब कैथोड रे पास होंगे तो उसका शैडो यहाँ बनेगा, दिस शोज दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। और वो दे प्रोड्यूस शार्प शैडो, यानी कि उसका एग्जैक्ट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो उनके रास्ते में जो कैथोड रेस ऐसे पास होंगे, तो उनके बीच में अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका शैडो वो लोग बनाएंगे। तो इससे उसने, विलियम क्रुक्स ने कंक्लूडेड दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इफ अ लाइट पैडल wheel mounted if a light paddle wheel mounted on an axle is placed in the path, the wheel rotates। ये तो कुछ अलग ही उसने ऑब्जर्व कर लिया, जब कैथोड रेस पास हो रहे हैं और उसने यहाँ पे वो, आपने वो बचपन में किया नहीं होगा, वो जो ऐसे फूंक मारते हैं तो घूमता है व्हील, लॉलीपॉप में मिलता था, तो मैंने किया है। सो इफ़ अ लाइट पैडल व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सल, ए एक्सल पे ये जो व्हील रख दिया, ये ऐसे व्हील रख दिया, तो ये घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कैथोड रे के पाथ में रखा जाए तो एन एक्सल इज प्लेस्ड इन द पाथ, द व्हील रोटेट्स, ये रोटेट करता है। तो इसने, क्रुक्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि दिस शोज देयर मटेरियल नेचर भी, कि कुछ हवा में भी तो कुछ होता है जिसकी वजह से फैन रोटेट करता है, कुछ दे ऑल्सो कंटेन समथिंग, कंटेन्स पार्टिकल्स, सो दिस शोज दैट दे वेर मटेरियल नेचर, यानी कि कैथोड रेस के अंदर कुछ ना कुछ तो था, जो कुछ ना कुछ था वो क्या डिस्कवर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। सो अब थर्ड पॉइंट जो है, थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूँ, सॉरी। When electric field is applied on the cathode rays, they deflect towards the positive plate of the electric field। ये चीज़ तो आपने पहले भी पढ़ा, किसके, थॉमसन ने भी यही चीज़ ऑब्जर्व किया था, ओके। बट थॉमसन पहले ही डिस्कवर कर चुके थे, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दिस शोज दैट द कैथोड रे कैरीज नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाइड होगा तो दे विल गेट डिफ्लेक्टेड। सो ये तो आपने पढ़ चुका है, तो इसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। शायद ये थोड़ा हट गया, मुझे स्मॉल करना पड़ेगा इसको, हो नहीं रहा, चलो। व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ मेटल फॉयल लेटर, हाँ ये था कि व्हेन, अगर वो किसी मेटल फॉयल पे स्ट्राइक करेंगे, कैथोड रेस जब एक किसी मेटल फॉयल पे स्ट्राइक करेंगे तो जो मेटल फॉयल रहेगा वो गर्म होता जाएगा, ठीक। दिस शोज दैट कैथोड रेस ऑल्सो प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ये मैं आपको बधे न दिख रहा हूँ, मैं इसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें पूरा है, ठीक। व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ मेटल फॉयल, जब मेटल फॉयल पे स्ट्राइक हुआ, गर्माहट हुई इस पर, तो इससे भी ये पता चलता है भाई कैथोड रेस हीटिंग इफेक्ट भी करते हैं। तो ये थी उसकी चौथी प्रॉपर्टी।
तो ये थी इसकी चौथी प्रॉपर्टी। अब हम और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस विच दे पास। अब आयोनाइजेशन ऑफ गैस मीन्स जो मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि जो एयर स्पेस थी बिटवीन में वो एक्सरे की वजह से आयोनाइज हो गई थी। क्यों आयोनाइज हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थे ऑयल ड्रॉप्स में, इलेक्ट्रॉन्स थे, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो स्केप हो गए थे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब वोल्टेज अप्लाई किया गया था, जो कुछ बचे रह गए जिनकी वजह से जो एयर स्पेस था वो आयोनाइज हो गया था। ठीक, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी यही बताती है इसकी कि दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। अभी आप मत सोचना कि भाई कैथोड रे में ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ये कहाँ से आई है, ये चीज़ भी ऑब्जर्व की गई है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो 6 पॉइंट, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंट ऑन द ग्लास वॉल। ग्रीन फ्लोरेसेंट, ये देखिए, ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जो थॉमसन ने किया था, ये ग्रीन, आपको ग्रीन ग्लो दिख रहा है? ग्रीन ग्लो वो डिपेंड करे, सॉरी ग्रीन ग्लो है, दे प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरेसेंट ऑन द ग्लास वॉल्स। जो अभी मैंने आपको दिखाई है जो कैथोड रे का था, जब कैथोड रे पास हुए तो इधर मैं ग्रीन ही कर लेता हूँ, इधर एक ग्रीन फ्लोरेसेंट ऑन ग्लास वॉल्स ऑब्जॉर्व हुआ, ठीक, डिस्चार्ज ट्यूब, एज वेल एज ऑन सर्टेन अदर फ्लोरेंट सब्सटेंस सच एज जिंक सल्फाइड। अब एक ग्रीन फ्लोरेसेंट डिपेंड करता है आप कौन सी गैस रिलीज की, ठीक, तो उन्होंने जो गैस रिलीज की थी वो उस गैस से हमें एक ग्रीन कलर मिला। अब आप ये मत हो जाना कि कुछ यार हर एक गैस प्रोड्यूस करने से ग्रीन ही निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो डिफरेंट कलर भी यानी डिफरेंट फ्लोरेसेंट भी ग्लास वॉल पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, वो सब तो फोटोग्राफिक प्लेट्स यानी कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट जो थॉमसन ने भी लगाई थी उस पर भी इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट दिखा। क्या दिखा? कि वो लोग नेगेटिवली चार्ज से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो फोटोग्राफिक इफेक्ट पे भी मीन्स दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। और लास्ट, अब आप ये जान लीजिए कि कैथोड रेस का जब भी स्कूली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और आपको ये सब याद करने, क्योंकि IIT JEE और नीट में भी ये सब ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। स्कूल एग्ज़ाम्स में आप जैसे 2 नंबर का पूछ लिया तो आप इसमें से मेन पॉइंट्स क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। मेन होंगे ये पहला, थर्ड, ये 3, ओके, ये आप 4 पॉइंट। और अगर ज़्यादा नंबर में पूछा तो आपको 8 के 8 याद रखने, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पर मैंने 8 है मेन जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, मैं वही लाया हूँ। आपने अगर आपके पास प्रदीप बुक है तो उसमें आई थिंक 12 वोल्ट के अप्रॉक्स इसकी प्रॉपर्टीज़ दी है, पर इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी 8 वो मैं लेके आया। तो हम लास्ट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सो दे पोजेसेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट मतलब जो फॉइल इधर रखी थी, फॉइल्स ऑफ मेटल, उससे ईजिली पास हो जा रहे थे। अभी कैसे पता लगा? जब 2 फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट किसी मेटल के रखे थे तो वो इधर से पास हुए, तभी तो इधर जाके वो स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद तभी तो इधर ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट मिला। तो ये वही चीज़ बता रहा है 8 पॉइंट। दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, दैट इज दे कैन ईजिली पास थ्रू थिन फॉइल्स ऑफ मेटल। अब ज़्यादा आप वैसे थिन ही ग्लास ट्यूब्स में तो थिन ही रखा जा सकता है, अब ज़्यादा मोटा रख दोगे तो भाई कैसे पास होगा? लाइट कभी तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जैसे आप लाइट ले लो तो ओपेक ऑब्जेक्ट से नहीं पास हो सकती, ट्रांसपेरेंट या कोई थिन ट्रांसपेरेंट होगा उसी से पास आउट हो गई। सेम चीज़ कैथोड रेज का भी था। दे पोजेस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट दैट दे कैन easily pass through foils of metal.
एंड दे आर स्टॉप्ड ईजिली बाय मेटल फॉइल्स। अब वही मैं बता रहा कि अगर ज़्यादा मोटा हो जाए तो वो इसके आगे जा ही नहीं सकते, इसके आगे जा ही नहीं सकते, वो खाली इधर ही स्ट्राइक हो पाएंगे, स्ट्राइक होकर डिफ्लेक्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने नेगेटिव लगाया है तो डिफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव लगाए तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो दे पॉजेज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट दैट इज दे कैन इजली 8 पॉइंट आपको याद रखनी है और आपको एग्ज़ाम में भी लिखनी ही पड़ेगी, और आपको बेसिकली सारे 8 पॉइंट याद रखने ही पड़ेंगे। ये इसकी पीपीटी हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, तो आप अगर अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। और गाइस, thanks for watching our video. Please subscribe our channel and do not forget to like and share. Thank you all of you for watching our video, and do join our Telegram and WhatsApp group. और हाँ, एक और बात, आप एक और ईमेल आईडी हम आज प्रोवाइड कर देंगे, जो मैं होमवर्क जो प्रोवाइड करूँगा, और अपने डाउट्स आप sharmamoksha@gmail.com पे पूछ सकते हो। और मैं आज ग्रुप में एक और ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, वो मेरी ईमेल आईडी होगी। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ एक और बार, लास्ट बार, जो लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, यानी सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।